Hello students, this is our first lecture on binomial theorem. First of all, I will define what is binomial theorem for a positive integer index. We will not do the proof of this theorem, we will simply do the result. If you have two real numbers x and a, उसके integer power है n is a positive integer, then how it is given? It is given by nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 times a plus nc2 x की power n minus 2 times a square up to so on ncr x की power n minus r a की power r plus so on ncn a की power n, right? Where what is nc0, nc1, nc2, ncr? ncr is given by n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Where what do we mean by factorial notation? If you have any natural number n, then its factorial is given by product of first n natural numbers, that is n into n minus 1 into n minus 2. कहाँ तक प्रोडक्ट करनी है हमने? 1 तक. For example, what is 5 factorial? It is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 5 4 20 26 120, right? What is 4 factorial? It is 4 into 3 into 2 into 1. उस नंबर से स्टार्ट होते जाना है, एक एक कम करते जाना है, कहाँ तक जाना है? 1 तक. ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज फैक्टोरियल. 4 into 3 is 12, 12 into 2 24. ठीक है. So what is NCR? It is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ठीक है. So what is x plus a की पावर n? आपने जो ऊपर वाला है वो सबका n है, नीचे का जो इंडेक्स है c का पहले 0 से स्टार्ट होना है, एक एक बढ़ाते जाना है, 0 से स्टार्ट होते n तक जाना है, राइट? उसके बाद x की पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लेनी है और a की पावर जो नीचे है वो लेनी है. यहाँ पे a की पावर 0 है, दैट्स व्हाई इट इज 1. यहाँ पे a की पावर 1 आ जाएगी, x की पावर n माइनस 1. यहाँ पे x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2. ठीक है. और भी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें, ये जो आरथ जनरल टर्म होगी इस एक्सपेंशन की वो क्या होगी? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर r, एंड लास्ट टर्म विल बी एन सी एन. यहाँ पे x की पावर क्या रह जाएगी? 0. सो दैट्स वाई इट इज 1 एंड a की पावर n. ठीक है. सो दिस इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंडेक्स. ठीक है. ये आपको याद रखनी है, इसमें आपको कोई मिस्टेक, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, right? So hereby you can see one thing. This is your first term, this is your second term, this is third term, right? So what will be this? This will be r plus 1th term. ठीक है. क्योंकि फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है. सो r प्लस 1th टर्म में ही r होगा. सो व्हाट इज r प्लस 1th टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन? इट इज n c r x to the power r n minus r a की पावर r. सो दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म of the binomial expansion, right? So there is a corollary of this theorem which says 1 plus x की power n, it is equal to, आप इसमें a की जो है a को 1 ले लो और x को x ले लो, तो ऊपर से आप देख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 एंड लास्ट में ncn x की पावर n. ठीक है. हाँ जी. नाउ व्हाट इज nc0? nc0 by definition is n factorial upon 0 factorial into n minus 0 factorial, which is n factorial. हाँ जी. यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई,
नेचुरल नंबर का तो हमने फैक्टोरियल डिफाइन कर लिया, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली जीरो फैक्टोरियल. जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो दिस इज 1 and n minus 0 is n factorial, n factorial cancel, so this is equal to 1. So nc0 for any value of n is always equal to 1. So 1 into x की power 0 is also 1. So this is 1. 1 plus nc1x plus nc2x square plus ncnx to the power n. ठीक है? So now we will do some examples. Example number 1. It says expand first part 2a plus 3b की power 4 and second part 2x minus 3 upon x की power 6, right? And the solution, first part is 2a plus 3b की power 4. ठीक है, so this is your x and this is your a. ठीक है, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4. ठीक है, so what is this? 4c0 2a की पावर 4 minus 0 and 3b की पावर 0 plus 4c1 2a की पावर 3 and 3b की पावर 1 plus 4c2 2a की पावर 2 3b की पावर 2 plus 4c3 2a की पावर 1 and 3b की पावर 3 plus 4c4 2a की पावर 0 3b की पावर 4. ठीक है, तो एक की पावर हमने कैसे लेनी है, सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को, और एक की पावर वो लेनी है जो इसके नीचे है, राइट? तो इस तरह से अपने ध्यान में रखना है. सो व्हाट इज 4c0? इट इज 1. व्हाट इज 2a की पावर 4 and 3b की पावर 0 is 1 plus 4c4 is 4 2a की पावर 3 into 3b plus what is 4c2? 4 factorial 2 factorial 2 factorial. ठीक है, and what is this equal to? 4 into 3 upon 2, that is 6. So this is 6 times 2a की पावर 2 3b की पावर 2. What is 4c3? It is 4 2a की पावर 1 3b की पावर 3 plus 4c4 is 1 2a की पावर 0 is 1, so 3b की पावर 4 आ जाएगा. Now what is this equal to? 2 की पावर 4, that is 16, a की पावर 4 plus 2 की पावर 3 8, 8 into 4 32, 32 into 3 will be 32 into 3 will be 96. 96 a 3b plus a square b square, ये वाले कोएफिशिएंट को सॉल्व करके आ जाएगा आपका 216 a square b square plus नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 216 a b क्यूब प्लस 3 की पावर 4 इज 81 b की पावर 4. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ दिस. नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. Second part is expand 2x minus 3 upon x की पावर 6, राइट? तो 6 से स्टार्ट करना है. 6c0 2x की पावर 6 and 3 minus 3 upon x की पावर 0 plus 6c1 2x की पावर 5 minus 3 upon x की पावर 1 plus 6c2 2x की पावर 4 minus 3 upon x की पावर 2 plus 6c3 2x की पावर 3 minus 3 upon x की पावर 3 plus 6c4 2x की पावर 2 minus 3 upon x की पावर ये आ जाएगी 4 plus 6c5 2x की पावर 1 minus 3 upon x की पावर 5 plus 6c6 minus 3 upon x की पावर 6. ठीक है, यहाँ पे हमने जो पावर्स है उसको बड़े ध्यान से इवैल्यूएट करना है. से पहले तो ये कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लीजिए. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. और ठीक है, तो आप हम साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं. 6c0 इज 1, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. 6c0 इज 1 बिकॉज nc0 इज ऑलवेज 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. What is 6c1? 6 factorial upon 1 factorial 5 factorial which is 6.
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, सो दिस इज 6. ठीक है, बिकॉज वी कैन राइट n फैक्टोरियल एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, जहां पे भी आप एंड करते हैं पीछे फैक्टोरियल लग जाएगा. राइट, जितना खोलना है खोल लो, अगर किसी पे एंड करना है तो पीछे फैक्टोरियल लगा दो. राइट, what is 6c2? It is 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial, which is 6 into 5 into 4 factorial upon 2 into 4 factorial. 4 factorial cancel, 2 into 3 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा. Right, next is 6c3. It is 6 factorial, 3 factorial, 3 factorial. 6 into 5 into 4 into 3 factorial आ जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल एक एज इट इज रख लेते हैं, और एक है 3 इंटू 2 विच इज 6. 6 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, सो दिस इज 20. नेक्स्ट इज 6c4. 6c4 आप देखेंगे ये भी 15 आ जाएगा. नेक्स्ट इज 6c5. 6c5 देखेंगे आप 6 आ जाएगा, एंड 6c6 इट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द कोएफिशिएंट्स. नेक्स्ट इज 6c0 इज 1. 2 raised to 6, ये तो 1 ही बन जाएगा. 2 raised to 6 जब आप कैलकुलेट करोगे इट इज 64. 64 x की पावर 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 आ जाएगा 32, ये आ जाएगा -3. यहाँ पे x की पावर 5 है और नीचे x है, तो 5 - 1 4 रह जाएगा, प्लस 6 से 2 ये आ जाएगा 15, 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, -3 की पावर 2 आ जाएगा 9 के बराबर, और x की पावर एक 4 है नीचे 2 है, तो 4 - 2 कितना हो गया 2 पावर, प्लस 6 से 3 दैट इज 20, 2 की पावर 3 है 8 के बराबर, -3 की पावर 3 है -27 के बराबर, और ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे x नहीं आएगा. 6 से 4 हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 15. 2 की पावर 2 इज 4, -3 की पावर 4 इज 81, और x की पावर नीचे बचेगी दैट इज 2, प्लस 6 से 5 दैट इज 6, 2 -3 की पावर 5 आ जाएगी आपकी 81 इंटू 3 दैट इज 243, ये आएगा माइनस साइन क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे x है, नीचे x की पावर 5 है, तो नीचे बचेगी x की पावर 4, प्लस 6 से 6 दैट इज 1, माइनस 3 की पावर 6 आ जाएगी आपकी 9 12 729 नीचे ओवर x की पावर 6. ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 4 प्लस 2160 x की पावर 2 माइनस 4320 प्लस 4860 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2916 अपॉन x की पावर 4 729 अपॉन x की पावर 6. ठीक है, so this is the required method, right? Next is example number 2. It says use binomial theorem to evaluate 10.1 की पावर 5. ठीक है, सॉल्यूशन, हाँ जी, 10.1 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 की पावर 5. ठीक है, so this you can take as x and this you can take as a. Now expand the binomial expansion, so it is 5c0 10 की पावर 5 प्लस 5c1 10 की पावर आ जाएगी 4 और 0.1 की पावर आ जाएगी 1 प्लस 5c2 10 की पावर आ जाएगी 3 और 0.1 की पावर आ जाएगी 2 प्लस 5c3 10 की पावर आ जाएगी 2, 0.1 की पावर आ जाएगी 3. 5c4 10 की पावर आ जाएगी 1, 0.1 की पावर आ जाएगी 4. 5c5 10 की पावर आ जाएगी 0, 0.1 की पावर आ जाएगी 5. ठीक है, तो जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे ये बन जाएगा 1 10 की पावर 5, इट इज 1 2 3 4 5 प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 0.1. 5 इंटू 0.1 विल बी 1/10 है, सो इट इज 1/10. ठीक है, ये 1/10 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो ये रह जाएगी 10 की पावर 3. ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज 3 zeros प्लस 5c2
5c2 आपका आ जाएगा 5c2 is 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 5 into 4 upon 2 that is 10. 5c2 is 10. So it is 10. 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3. यहाँ पे 10 की पावर क्या है 1/10 है ना ये. सो इट इज 10 की पावर -2. ठीक है. सो यहाँ बचेगी 4 - 2. टोटल पावर बचेगी 10 की पावर 2. सो इट इज 100 प्लस 5c3. 5 it will be 100 and next is 5c3. 5c3 is same as 10. ठीक है. it is 5c it will be same as 5c2. so यहाँ पे 10 आ जाएगा. so 10 यहाँ आ जाएगा 10 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3. तो ये बचेगा 2 + 1 3 3 - 3 0 that is 1. 10 की पावर 0 which is 1 plus 5c4 it is 5 10 की पावर 1 10 की पावर -4 so 4 1 - 4 -3 10 की पावर -3 so it is 5 upon 1 2 3 so it is 0.005 right. next is plus 5c5 1 ये आ जाएगा 0.00001. ठीक है. तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये सारे you will get it equal to 105.101.00501 right. next is example number 3. it says the first 3 terms in the expansion of 1 plus ax raised to n are 1 plus 12x plus 64x squared. Find n and a. ठीक है. and you know the first 3 terms 1 plus ax raised to n ये क्या बन जाएंगी nc0 nc1 ax की पावर 1 nc2 ax की पावर 2. इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1. इसको आ जाएगा n ax प्लस n -1/2 a स्क्वायर x स्क्वायर. सो दीज आर फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है. और ये इनकी वैल्यू हमें दी गई है ये वाली. तो 1 के बराबर है. नेक्स्ट सेकेंड टर्म के. सो n ax इज 12x. next is third term is third term. so it is n -1/2 a square x square. ये किसके बराबर है 64x square के बराबर. ठीक है. x और x कैंसिल. सो n a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 के बराबर. नेक्स्ट x square कैंसिल. n -1 a square आ जाएगा 128 के बराबर. ठीक है. सो पुट द वैल्यू ऑफ n a हियर. इसको आप लिख सकते हैं n इंटू ए n -1 इंटू ए दैट इज 128. ये है 12. सो 12 n -1 इंटू ए इज 128. सो n -1 इंटू ए इज 128 अपॉन 12. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका ओके 128 अपॉन 12 6 2 64 3 32 अपॉन 3. एन ए माइनस ए इज 32 अपॉन 3. ठीक है. यूजिंग दीज टू. ठीक है. अगर आप इन दोनों को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. पुट दैट वैल्यू ऑफ ए इन एनी ऑफ द इक्वेशंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो. ठीक है. सो आपने इस तरह से एन और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4. It says find the 8th term of 2x upon 3 minus y square की पावर 11. हमने इसकी 8th टर्म फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला क्या है n c r x की पावर r a की पावर n माइनस r. ठीक है. सो r प्लस 1 ये r प्लस 1th टर्म का है. तो हमने कौन सी फाइंड आउट करनी है 8th टर्म. तो r को हम क्या पुट करेंगे 7 के बराबर. सो t8 विल बी n क्या है 11. ठीक है. 11 c 7 x क्या है दिस इज x दिस इज a. ठीक है. x क्या है 2x अपॉन 3 इसकी पावर r दैट इज 7.
और a क्या है माइनस वाई स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी 11 माइनस 7 दैट इज 4. ठीक है, सो इट इज 11 c 7 2 की पावर 7 3 की पावर 7 माइनस कैंसिल x की पावर 7 y की पावर 8. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा कोई कांस्टेंट, ये आपका आ जाएगा -1760 अपॉन 27. ठीक है, ओके. x की पावर 7 y की पावर 8. Right? So this way you are to find the indicated term. Okay? आगे भी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर. थैंक यू.